Failing to plan is planning to fail. Good evening, students. Good evening, and welcome to the Legal Game presented by Unacademy. I am Sarthak Sharma. I'm your legal reasoning expert at this wonderful platform that makes your learning easy, effective, efficient, and interesting. And today I have come up with a very important session because in this session I'm going to discuss the best plan to prepare for CLAT 2022. जितना जरूरी तैयारी है उतनी जरूरी तैयारी कैसे करना है ये strategy making भी है. So today I have come up with this strategy session in which I'm going to tell you that how you should plan to prepare for CLAT 2022 in order to maximize your chances, to optimize your chances of cracking this wonderful examination, the Common Law Admission Test 2022. Before starting, I would just take your 10 seconds to switch on the live chat because without switching on the live chat, there can no class can be a perfect, wonderful class. So yes, the live chat is on my screen. Hi Sakshi, good evening. Hey, Trasik, it's a great username. I hope it's not a real name. So let's start with the class. And as I said, remember this thing. Mind my words again. Failing to plan is planning to fail. अगर आप प्लान करने में ही फेल हो रहे हैं तो आप प्लान कर रहे हैं फेल होने की. All right. So let's start with today's session in which I will guide you that how you should plan for CLAT 2022. किस तरह प्लान करना है, क्या करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, क्या नहीं करना वो भी बताऊंगा. Because we need to know the both sides of the coin, that what we should do and what we should not do. So let's start with the class. Before proceeding, let me give you a short intro of myself. I am Sarthak Sharma. I am a penultimate year law student at Faculty of Law, Jamia Millia Islamia. You know that I have more than 2 years of teaching experience. I have mentored more than 10,000 students. Rather, I will say that I have been a companion to more than 10,000 students. And I have produced a lot of rankers in all the prestigious law entrance examinations of this nation. I hope the students who are watching me live right now, they are going to add their name to this list. Yes, and remember guys, for me each day count. So मैं in 2 years को more than 700 days कहूंगा. That are still counting. Yeah. And I have a message. The traffic is saying, so I am preparing for CLAT 2023. Is this helpful for me? Definitely it's helpful for you. It's helpful for all the students who are preparing for the law entrance examinations in the coming year or the next year, like in 2022 or in 2023. If you are preparing for the law entrance examinations for any law entrance, not specifically CLAT, then this session is made for you. जस्ट स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन. और मैं आपसे वादा करता हूं इस क्लास के एंड तक आप लोग मोटिवेशन से बिल्कुल भर जाएंगे. आपको पता होगा कि आपको क्या करना है. ओके, इफ आई वांट टू गो टू अ सर्टेन प्लेस, तो मुझे सिर्फ उस प्लेस का नाम पता होना काफी नहीं है. मुझे उस प्लेस तक जाने का रास्ता भी पता होना चाहिए. मुझे उस रास्ते में जो हिंड्रेंसेस, जो अड़चने आएंगी उनके बारे में भी पता होना चाहिए और उनको टैकल कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग विद दिस सेशन in which I'm going to make you aware about everything in this journey of CLAT preparation of 2022 or 2023. So guys, you can join me on Telegram as well. The Telegram link is on your screen. So by joining me on Telegram, I will share a lot of stuff which would definitely be helpful for you. Now coming to the subscription of Unacademy, so you may subscribe for any of the following terms, and if you will use the code SRT10, SRT10 is a short form of my name, then it will give you an additional discount of 10%. All right. In addition to the regular discount, you will get an additional plus 10% discount by using the code SRT10. So do avail this offer. And coming to the unique features, so guys, you can have a look over the unique features of Unacademy. Yes, I always say that U in Unacademy stands for uniqueness. So these six are some among a lot more features, unique features of Unacademy. You may avail these features as well. The Rankers batch, yes. Very recently, Unacademy ने Rankers batch launch किया. It is the 2-year comprehensive batch for CLAT 2023 and it is going to start on 22nd of October. We will teach from the basic foundation, so you may enroll for this batch. And yes, Unacademy में सबसे बेस्ट चीज मुझे यही लगती है कि यहाँ पर the people at Unacademy believe that no one knows everything but everyone knows something. हर कोई सब कुछ नहीं जानता. कोई इंसान कहता है मुझे सब कुछ आता है मुझे, then he is either lying or he is God. कोई इंसान तो ऐसा है नहीं इस दुनिया में जो सब कुछ जानता है. All right, so no one knows everything but everyone knows something, and that's why we have come up with the live quiz feature for the students. In this feature, the students can not only participate in the quiz but also they can launch their own quizzes. Means आप सिर्फ क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप अपनी क्विज भी
लॉन्च कर सकते हैं। हो सकता है कि साक्षी को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इतने अच्छे से आता हो कि वो अपने बहुत सारे टीचर्स से भी ज्यादा कुछ बातें जानती हूँ, सो शी कैन लॉन्च अ क्विज ऑन दैट टॉपिक। सिमिलरली ट्रैसिक, आपको हो सकता है कि कोई देयर शैल बी अ सब्जेक्ट विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, और उसकी आपको ऐसी बातें पता हो जो किसी को ना पता हो, यू कैन लॉन्च अ क्विज एंड शेयर नॉलेज। सो सबका साथ सबका विकास an academy पर जरूर होगा, देश में हो या ना हो। Let's move forward. These are the special class features. Yes, you can join my special classes. I have already done a lot of special classes on the Unacademy platform. So the link is in the description as well. आप उस link से मेरी profile पे जा सकते हैं and you can watch my special classes. I will be taking special classes in the future as well. So you can join that platform because there are a lot of features जो हम YouTube पे use नहीं कर सकते हैं. But these features are there in the special classes. Let's start with the class now, students. Without wasting further time, चलिए क्लास के साथ शुरू करते हैं. So, as the topic of this class is the best plan to prepare for CLAT, for Common Law Admission Test. So, first of all, आपको पता होना चाहिए that what is CLAT, why are you preparing for CLAT, and how to prepare for CLAT. ये तो सबसे important question है. बट सबसे पहले यू शुड नो दैट व्हाट इज क्लैट. क्या कोई बता सकता है? कैन समबडी इन द लाइव चैट, कैन एनी ऑफ द स्टूडेंट टेल मी दैट व्हाट इज क्लैट, व्हाट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट? Okay, I hope most of you know कि this common law admission test is a common admission test for the 22 national law universities of this nation. इस देश के जो 22 national law universities हैं उनमें admission लेने का जो दरवाजा है वो common law admission test है. All right, so this CLAT is a common admission test for admission to the 22 national law universities, and it would not be fallacious अगर मैं कहूं कि these national law universities are IITs of law. इंजीनियरिंग तो कहीं से भी की जा सकती है बट आईआईटीएंस का अलग से नाम होता है. ओके, इफ यू डू इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी देन यू विल have a ultra edge over the other engineers. Similarly, the NLUs are IITs of law. आप लॉ तो कहीं से भी कर सकते हैं बट इफ यू विल pursue law from national law universities, the prestigious national law universities, then definitely students, CLAT is the biggest opportunity for all of you. Yes. यस रसिक एंड साक्षी, यू आर राइट, इट्स कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और मैंने बता दिया कि क्या है. अब वाई क्लैट, तो मैंने वाई का आंसर भी दे दिया है. यू शुड अपीयर फॉर क्लैट बिकॉज इट इज द स्पीयरहेड लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ दिस नेशन. क्लैट के थ्रू आपको आईआईटीज ऑफ लॉ में एडमिशन मिलेगा. द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आर आईआईटीज ऑफ लॉ. इट वुड नॉट बी फेलिशियस इफ आई विल से दिस एज आई सेड. सो गाइज, दिस सेशन इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स. ये सेशन स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है हु आर प्लानिंग टू टेक ऑफ, जो प्लान कर रहे हैं कि वो टेक ऑफ करेंगे द एयरप्लेन ऑफ देयर फ्यूचर एंडेवर्स, जो अपने फ्यूचर को के एयरप्लेन को टेक ऑफ कराना चाहते हैं फ्रॉम द रनवे ऑफ क्लैट. फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू टेक ऑफ द एयरप्लेन ऑफ देयर फ्यूचर एंडेवर्स थ्रू द रनवे ऑफ क्लैट, दिस सेशन इज फॉर यू. बिकॉज जितना जरूरी पढ़ना है उतना जरूरी ये भी है कि कैसे पढ़ा जाए. All right, winners do not do different things, they just do things differently. So today I'm going to tell you that how you can do differently. Okay, what are the strategies that have worked for me, and definitely they will work for you as well. So how to prepare for CLAT, the biggest question, the biggest dilemma कि सर हमें पता है CLAT कितना जरूरी है, हमें एलएनयू से लॉ करना है, सो हमें ये भी पता है कि हमें CLAT क्यों करना है. वी आर क्लियर विद दिस एंड दिस, बट दिस थिंग इज वेरी क्लाउडी. हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट, ये बहुत क्लाउडी सिचुएशन है हमारे लिए, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा हम कैसे पढ़े. इतना वास्ट सिलेबस, इतनी वास्ट बुक्स, और इतना तो इफ इफ 60,000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपीयर फॉर क्लैट, तो उनमें से एटलीस्ट 10% 6,000 स्टूडेंट्स तो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होंगे. उन 6,000 में से भी एडमिशन तो सिर्फ 1,000 का ही होगा. ओके, एंड इफ आई विल काउंट ऑन द टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज, देन सीट्स आर लेस देन 500. टॉप 5 एनएलयूज में सीट्स तो 500 से भी कम है. 60,000 में से 6,000 तो बहुत मेहनत कर रहे होंगे. सो उन 6,000 में से भी टॉप 100 में या टॉप 50 में कैसे आए? हाउ टू प्रिपेयर स्मार्टली. आई एम गोइंग टू टेल यू दिस थिंग टुडे. हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे. सो guys, please give the likes to this amazing session. Sakshi is urging all her क्लासमेट्स, अपने सभी बैचमेट से साक्षी कह रही है. सो मेरी बात नहीं तो साक्षी की तो सुनी लीजिए. जस्ट हिट द लाइक बटन एंड स्टे विद मी टिल द एंड.
लेट्स स्टार्ट विद दिस क्लास. एज आई सेड, मैंने क्लास की शुरुआत ही इस बात से की थी कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, एंड इट इज द रियलिटी. अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं तो आप और अपने आप आपका प्लान बन रहा है, आपकी लाइफ प्लान कर रही है आपको फेल करने का. सो यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर क्लैट. विदाउट अ प्लान, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्लान के कोई भी जीत नहीं सकता इन एनी पर्टिकुलर फील्ड. किसी भी फील्ड में जीत हासिल नहीं हो सकती. यू कैन नॉट बी अ विनर इफ यू डू नॉट हैव अ प्लान. सो as I said you that this CLAT is a spearhead national law entrance test for admission to BLLB as well as the postgraduate, that is LLM. हम LLM की बात नहीं कर रहे हैं. We are only talking about the BLLB. It can be BLLB, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB. अलग अलग ग्रेजुएशंस के साथ इंटीग्रेट करके 5 years लॉ कराते हैं डिफरेंट नेशनल यूनिवर्सिटीज. सो देयर आर अ टोटल ऑफ 23 NLUs, आउट ऑफ विच 22 टेक एडमिशन थ्रू CLAT. एंड द ओनली एक्सेप्शन जो अपना अलग एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं, दैट इज द नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, which conducts AILET. All right. And as I said, that it would not be fallacious if I say that NLUs are IITs of law. Now, how to make a plan first of all? So remember, guys. अच्छा ये बताइए, हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है? ओके, हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है? What will you choose? A hard work or a smart work? You have to choose a smart work. हार्ड वर्क तो मैंने बताया ना. 60,000 स्टूडेंट्स अगर फॉर्म भर रहे हैं, और क्लैट का तो फॉर्म भी 4,000 रुपए का है. तो अगर कोई स्टूडेंट 4,000 रुपए देके फॉर्म फिल कर रहा है, देन इट इज क्वाइट एक आम परिवार का, एक कॉमन इंडियन फैमिली का, जिसको हम कहते हैं कॉमन इंडियन हाउस होल्ड और मिडिल क्लास फैमिली. मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट अगर 4,000 रुपए का फॉर्म फिल कर रहा है तो वो हार्डवर्क करेगा, क्योंकि 4,000 रुपीज इज अ hefty अमाउंट. हार्डवर्क तो सब कर रहे हैं. हार्डवर्क डू नॉट lead to positive results. Smart work does. And what is smart work? Smart work is hard work channelized into the right direction. So आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने इस hard work को right direction में कैसे लेके जाना है. Because when this hard work is channelized into right direction, it leads to smart work. Okay? You have to do smart work. You have to be wise. So as I said, what will you choose? Smart work or hard work? I hope you all know that what you will choose. ओके, ट्रैफिक यू एग्री विद मी? अगर मुझसे एग्री कर रहे हैं तो फिर अप्लाई भी करें. ओके, एग्री करने से कुछ नहीं होता है. ऑल राइट, इफ यू एग्री विद मी, अप्लाई दिस थिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. आज तक जो किया किया. लाइफ ऑलवेज गिव्स अ सेकंड चांस, एंड दैट सेकंड चांस इज नॉट टुमारो, इट इज टुडे. बहुत लोग कहते हैं कि जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, और वो दूसरा मौका कल है. भाई साहब, कल तो कभी आता ही नहीं है. द सेकंड चांस इज टुडे, नॉट टुमारो. आज तक जो किया किया, आज से जो करेंगे वो आपको आपके गोल के और नजदीक लेकर जाएगा. इस नजरिए के साथ, इस व्यू पॉइंट के साथ स्टार्ट योर प्रिपरेशन. एंड स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं. स्मार्ट वर्क इज सिंपली हार्ड वर्क चैनलाइज्ड इनटू राइट डायरेक्शन. सही डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है. When you will channelize your hard work into right direction, then you will do smart work, and when you will do smart work, the chances of your success will increase manifold times. बहुत गुना बढ़ जाएंगे. So I hope first of all मैं आपको ये important news देना चाहता हूं, although I know कि आपको पहले से पता होगी. There had been a change in CLAT pattern. I hope you know that from 2020 onwards there was a change in CLAT pattern. And what was that change? वो change क्या था? 50 questions reduce हो गए. All right. In the old pattern, there were 200 questions. In the new pattern, there is 150 questions. The time is still same. पहले भी 2 hours था और अब भी 2 hours ही है. The types of questions in the English section and in the whole paper are now passage based. There had been reduction of 50 questions and the whole paper is passage based now. All right. I hope you know this thing. The whole paper is passage based. So because of the passage based question, अब questions थोड़े lengthy हो गए हैं. I hope you agree this thing. The paper is passage based, the paper is lengthy. That's why the total number of questions have been reduced by 50. पहले हुआ करते थे 200 questions. Let's compare the old and the new pattern. हम कंपेयर करते हैं. ज्यादातर स्टूडेंट्स की नेगेटिव अप्रोच है. वो कहते हैं कि सर न्यू पैटर्न इज वेरी टफ व्हेन वी कंपेयर इट टू द ओल्ड पैटर्न. आज का सेशन जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आई प्रॉमिस टू यू कि आज के सेशन के बाद आप कहेंगे कि सर ओल्ड पैटर्न टफ था, न्यू पैटर्न बहुत इजी है.
The new pattern is way easier than the old pattern. Just change your viewpoint. नजरिया बदलो. नजर सबकी दो है, नजरिया सबका अलग है. हमें नजरिया बदलना है. And that's why I'm here. ग्लास को कभी भी आधा खाली नहीं, आधा भरा हुआ देखना है. So guys, the old pattern was contained single liner question. क्या था old pattern में? Old pattern में single liner questions थे. New pattern is passage based. So पहला पॉजिटिव पॉइंट तो यही हो गया दैट इन द न्यू पैटर्न आपको क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा. इट इज अ पैसेज बेस्ड पेपर and in a lot of questions if you are smart enough you can find the right answer in the question paper itself. It's the first positive point. अब मैं second positive point बताता हूं. The time is still same. In old pattern the maximum time allotted was 2 hours. In the new pattern the maximum time allotted is 2 hours. सेकंड पॉजिटिव पॉइंट. अब तक मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला. अगर किसी स्टूडेंट को नेगेटिव पॉइंट मिले देन आप बता सकते हैं. व्हाट डज स्टैटिक इज सेइंग? द ओल्ड पैटर्न वाज फॉर हार्ड वर्कर एंड द न्यू पैटर्न इज फॉर स्मार्ट वर्कर. एग्जैक्टली यू गॉट इट राइट. द न्यू पैटर्न इज फॉर स्मार्ट वर्कर. आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, अभी बस आप मुझसे 2 मिनट रुके. मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसके बाद आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा क्लैट को देखने का. सो 2 थिंग्स क्लियर. The time is same and the questions have been reduced by 50. पहले आपको 2 hours में 200 क्वेश्चन करने होते थे. अब आपको 2 hours में 150 क्वेश्चन ही करने हैं. 3 पॉजिटिव पॉइंट. एंड नाउ द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट. एक बात बताइए, स्टूडेंट्स कहते हैं सर बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है. तो न्यू पैटर्न में तो सिलेबस बहुत नैरो हो गया है. The syllabus in the new pattern is way narrower than the old pattern. Old just answer a simple question. ओल्ड पैटर्न में 200 सिंगल लाइनर क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकता है. देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल टॉपिक्स जो ओल्ड पैटर्न के क्लैट में आ सकते थे इन अ सिंगल ईयर? द मैक्सिमम पॉसिबल टॉपिक्स इन द ओल्ड पैटर्न कैन बी हाउ मच? कैन समबडी आंसर दिस क्वेश्चन? कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के ओल्ड पैटर्न में मैक्सिमम पॉसिबल टॉपिक्स जो कवर हो सकते थे वो कितने आ सकते थे? 200 और टॉपिक्स could be there maximum. मींस उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. इट इज द मैक्सिमम लिमिट. आई एम गिविंग यू द मैक्सिमम लिमिट. मैक्सिमम 200 odd topics might come in the old pattern because in the old pattern there were 200 questions and वो 200 के 200 क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट थे, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते थे. All right, they may be connected and they may not be connected, but they were not compulsorily connected. So I can say that in the old pattern the syllabus was so vast कि पेपर में 200 और टॉपिक्स भी आ सकते थे. बट इन द न्यू पैटर्न मैक्सिमम टॉपिक्स कितने हो सकते हैं? हाउ कैन बी द मैक्सिमम टॉपिक्स? 150? नॉट एट ऑल. द मैक्सिमम टॉपिक्स कैन जस्ट बी 30, नॉट मोर देन दिस. मैक्सिमम 30 टॉपिक्स. नाउ स्टूडेंट्स माइट बी सेइंग सर कैसे? सो गाइस, एक पैसेज से 5 क्वेश्चन आते हैं. टोटल क्वेश्चंस आर 150. जस्ट डिवाइडेड 5 3 15 एंड द राइट आंसर इज 30. अब जब एक पैसेज से 5 क्वेश्चन आएंगे तो पांचों क्वेश्चन तो एक सिंगल टॉपिक से ही हुए ना. अब फॉर इंस्टेंस आपने डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट एक इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स गई थी दैट लेटर ऑन फेल्ड, या फिर जो बाइडेन का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड एक पैसेज आ गया एंड ऑल द 5 क्वेश्चंस आर ऑब्वियसली रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ द पैसेज. आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से याद है, आपने पढ़ा है उसके ऊपर, काफी रिसर्च किया है, देन यू कैन इजीली आंसर ऑल द 5 क्वेश्चंस. मींस एक सिंगल टॉपिक को अगर आपने पढ़ा है अच्छे से और वो टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाता है, सो आपका एक क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चंस, कम से कम 5 क्वेश्चंस तैयार होंगे. ऑल राइट, सो द सिलेबस इज सो नैरो, बहुत नैरो हो गया है. So it would not be wrong अगर मैं कहूं that the old pattern of CLAT was like a vast ocean. बहुत बड़ा ओशियन था और आपको इस ओशियन की सिर्फ सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर तैरना था. Now the new pattern is only a small pond, but you need to dive deep into this pond. आपको इस पॉन्ड की गहराइयों में कूदना पड़ेगा. ओके, आपको एक टॉपिक की डीप नॉलेज होनी चाहिए and the scope of the syllabus is way narrower in the new pattern. Got it? It is clear that क्या मैं समझाना चाहता था आप लोगों को? Is it clear? I hope it is clear that the maximum possible topics are way less in the new pattern when we compare it to the old pattern.
In the new pattern, the maximum topics can be 30, not more than this, in a single paper. Common law admission test 2015, 18, 19 की अगर मैं बात करूं तो 200 क्वेश्चंस थे, सिंगल लाइनर है, एक क्वेश्चन दूसरे से कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात करूं तो 200 अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। इन द कॉमन लॉ एडमिशन टू टेस्ट 2021 22 जो अब नेक्स्ट ईयर होने वाला है, देयर वुड बी 150 क्वेश्चंस एंड इट वुड बी पैसेज बेस्ड। वन पैसेज would be followed by 5 questions related to the topic of the passage. What does this mean? This mean that maximum 30 topics हो सकते हैं, क्योंकि हर 5 क्वेश्चंस एक सिंगल टॉपिक से ही आएंगे। Okay, what is your problem, Traffic? Sir, my problem is reading pace and also I am slow at thing. Then practice makes the man perfect. Remember, Traffic, if you are not a good reader, you cannot be the leader. And this thing is perfectly, perfectly fits to CLAT. If you are not a good reader, you cannot be a good leader. Reading skills को improve करने का एक ही तरीका है, just read and read, nothing else. पढ़ो, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना स्टार्ट करो। हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, इट वाज देयर वाज इन अ बुक, आई रेड दिस थिंग कि अगर इंसान 90 डेज तक एक काम डायरेक्टली करता है ना, रोज करता है, तो उसकी आदत में इंस्टॉल हो जाता है। यू हैव एनफ टाइम, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इज अराउंड 7 or 8 months away from now, so you can prepare. So got it, everything is positive about the new pattern, nothing negative. कोई नेगेटिव चीज है ही नहीं, सब कुछ पॉजिटिव है। टाइम रिड्यूस हो गया, टाइम सेम है, क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए। ओके, एंड ऑब्वियसली जब क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए, आप एक ये स्मार्ट वर्कर के लिए बहुत अच्छा स्कोप मिल गया है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एंड द बिगेस्ट थिंग, द स्कोप ऑफ सिलेबस इज वे नैरोअर। द न्यू सिलेबस इज वे नैरोअर, बहुत नैरो है when we compare to the old syllabus. And that's why I said this thing, that the old pattern एक ओशियन की तरह है, एक बहुत ही वास्ट ओशियन। आपको इस ओशियन के सरफेस के ऊपर तैरना है, लेकिन बहुत ही वास्ट ओशियन है, इतना वास्ट सिलेबस है। न्यू पैटर्न क्या है? न्यू पैटर्न इज जस्ट अ पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको इस यू नीड टू डाइव डीप इनटू दिस पॉन्ड, आपको इस तालाब की गहराइयों में कूदना पड़ेगा। आपको एक टॉपिक की डीप नॉलेज होनी चाहिए। हियर डेप्थ मैटर्स एंड हियर द विड्थ मैटर्स, the size matters. So here now you just need to dive deep, but the syllabus, the extent of the syllabus, the scope of the syllabus is way low. All right. So guys, I hope you are clear that what is the change in CLAT pattern. Like in general knowledge, पहले direct questions आते थे. All right. Now they are passage based questions. There would be a passage of around 400 words, and the passage would follow 4 or 5 questions. Okay, what Tasik is saying, honestly, you give more reasons to love the new pattern CLAT. Yes, Tasik, and that's what I was saying. ओके, इंटरेस्ट तो जनरेट करना ही पड़ेगा। देखो, अगर किसी फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है, देन हाउ विल यू एक्सेल? किसी भी हिस्ट्री से आप एक नाम को उठा के देख लीजिए, इफ दैट पर्सन इज सक्सेसफुल इन दैट फील्ड, दैट्स व्हाई बिकॉज ही लव्ड दैट फील्ड, ही वाज इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। आई वाज सेइंग कि यार तू 10-10 11-11 12-12 घंटे यूपीएससी की बुक्स के साथ कैसे पढ़ता रहता है? डू यू नो व्हाट डिड ही सेड? ही सेड कि यार सार्थक, यूपीएससी एक बहुत पजेसिव गर्लफ्रेंड की तरह है। ओके, आप तुम इसको जितना टाइम दोगे, ये तुमको उतना ही ज्यादा प्यार देगा। ऑल राइट, सो यस, यू नीड टू लव योर फील्ड, यू नीड टू लव योर स्टडीज इफ यू वांट टू प्रॉस्पर। एंड मैं आपको अपने सेशंस में पढ़ाऊंगा भी, और पढ़ाई के साथ आई विल मेक यू फॉल इन लव विद लर्निंग सिंपली। सो what is the change in CLAT pattern? You are clear, it is a passage based, there would be passage based question. In the old pattern बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते थे, like what is the question? Who has been made the new president elect of United States of America? ये ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको बताना है जो बिडेन। नाउ हाउ देयर वुड बी अ क्वेश्चन, जो बिडेन इज मेड द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, ये आपको पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई होगी और उसकी एक डीप इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, दैट ही वन द इलेक्शंस विद हाउ मेनी वोट्स, हो सकता है पूछ लिया जाए। ही बिलोंग्स टू विच पार्टी, ये पूछ लिया जाए। द मेथड ऑफ इलेक्शन इन इंडिया फॉर द प्रेसिडेंट is which of the following, or under which of the following article the president is elected or president is there in the constitution. So
अब क्वेश्चन दैट वुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ द पैसेज वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे पहले। Now there would be a topic, and related to that topic, deep questions would be asked. From direct questions, you need to focus on the deep questions, and that's why मैं हर क्लास से पहले ये रखता हूं, what, why and how, बिकॉज किसी भी चीज की डेप्थ को जानना है तो हमें इन तीनों सवालों का जवाब चाहिए होगा। ओके, सो व्हेन यू विल स्टडी वॉट एवर यू आर स्टडिंग, पढ़ते वक्त एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ना है, एक पर्टिकुलर फैक्ट नहीं पढ़ना है, वो क्या है, वो क्यों हुआ और वो कैसे हुआ, ये तीनों बात जाननी है। देन यू कैन गो इन डीप ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एंड जब आप डेप्थ में जाएंगे तभी आप इस पॉइंट को क्रॉस कर पाएंगे। ऑल राइट, तभी आप कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में विजय प्राप्त कर पाएंगे। यू विल बी द विनर ओनली इफ यू विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स, द बेस्ट स्ट्रेटेजी, स्ट्रीट व्यू वर्सेस सैटेलाइट व्यू, क्या समझ में आ रहा है? माय ओल्ड स्टूडेंट्स, इफ दे आर वाचिंग मी राइट नाउ, देन उनको पता होगा दैट व्हाट आई मीन विद दिस स्ट्रीट व्यू एंड सैटेलाइट व्यू, बिकॉज आई हैव टोल्ड दिस थिंग इन माय टू माय स्टूडेंट्स पर्सनली एज वेल एज इन माय प्रीवियस सेशंस वेयर आई वाज टेकिंग इट। सो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं अपने खुद से। राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, एंड आई द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज द स्ट्रीट व्यू स्ट्रेटेजी। सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। What is the most important thing? To understand the syllabus. Okay, the most important thing is to understand. Okay, what are you saying to ऐसे Democrats ना? Yes, ऐसे Joe Biden belongs to the Democrats. All right, but अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपको सिलेबस जानना है। If you do not know the syllabus, then how will you cover it? कहते हैं स्टूडेंट्स के सर सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। सिलेबस तो कवर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भाई साहब सिलेबस आपको पता नहीं है। सिलेबस क्या है क्लैट का? क्या क्लैट का सिलेबस वो 5 सेक्शंस हैं जो आते हैं? इज इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग एंड जीके, ये 5 सेक्शन सिलेबस हैं? नॉट एट ऑल, दीज 5 आर नॉट द सिलेबस। अगर ये 5 आप सिलेबस समझते हैं, देन यू आर ऑन द स्ट्रीट व्यू ऑफ द सिलेबस, यू आर ऑन द सैटेलाइट व्यू ऑफ द सिलेबस, आई एम सॉरी। और सैटेलाइट व्यू ऑफ द सिलेबस कैन नॉट लीड टू सक्सेस। जो आसानी से मिल जाए उसकी क्या सक्सेस? मैं गूगल पे लिखूं व्हाट इज द सिलेबस ऑफ क्लैट, गूगल विल से लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, इट इज द सिलेबस। जो आसानी से मिल जाए वो कैसे आपको जिता सकता है? ओके, द गेम चेंजर कैन बी दैट थिंग जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत लगे, एंड दैट्स व्हाई स्ट्रीट व्यू इज द एक्चुअल व्यू ऑफ द सिलेबस। एंड स्ट्रीट व्यू जानना बहुत मुश्किल है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कैसे आप स्ट्रीट व्यू निकाल सकते हैं। इट्स अ फोटोग्राफ फ्रॉम माय नोट्स। आरजेएस के मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाया, एंड आई नोटेड डाउन ईच पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 1 किस सब्जेक्ट से आया और उस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 किस सब्जेक्ट से और उस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ऑल दिस। So all right, what I'm doing, I'm trying to find the street view of the syllabus. What is this street view? Let me explain you in detail. मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि आप अगर इस street view strategy को follow करेंगे, then you will achieve the feat of success. At least your chances of getting success will increase manifold times. What I'm doing here, मैंने राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए। प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने पढ़ा और हर एक क्वेश्चन को सिर्फ मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने उस क्वेश्चन का सब्जेक्ट ढूंढा कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 वाज फ्रॉम राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 वाज फ्रॉम द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अब मैंने सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है, तो सब्जेक्ट के किस टॉपिक से है वो क्वेश्चन। ऑलराइट, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 वाज फ्रॉम सेक्शन 25 ऑफ आरआरसीए। व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं क्वेश्चन पेपर का मैं एक्चुअली इस एग्जामिनेशन का स्ट्रीट व्यू जानने की कोशिश कर रहा हूं। ऑल राइट, बिकॉज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस वो 5 सेक्शंस नहीं है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस वो 150 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो ऑल राइट, माई बिगेस्ट, आप किसी भी एजुकेटर से पूछें, किसी भी आप जीनियस से पूछें दैट व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर, द पर्सन विल से कि गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। बट स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो सिर्फ गो थ्रू ही करते हैं। गोइंग थ्रू इज नॉट एनफ। नोट दिस थिंग डाउन। अगर आप हर एक क्वेश्चन का सब्जेक्ट एंड टॉपिक नोट डाउन कर लेंगे, देन एट द एंड ऑफ योर ऑफ दिस एनालिसिस यू विल कम अप विद अ कंक्लूजन कि क्या क्या किस किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑल राइट, सो गो व्हाट यू नीड टू डू नाउ,
टेक द प्रीवियस 5 years पेपर of your target examination, not only CLAT. अगर आप ब्लैट के लिए प्रिपेयर करते हैं go for ब्लैट. If you are going for MH set, then go for it. If you are going for JMIL or entrance test, go for it. If you are going for AILET, go for it. किसी भी टारगेट एग्जामिनेशन के प्रीवियस 5 years पेपर्स को उठाएं. फिर क्या करना है, उन 5 years पेपर्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस रखें. डिटेल्ड एनालिसिस मींस द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 150 तक. If each question is coming from which subject, like question number 1 is from English, and English में वो question antonym synonym का है, and then the topic of that particular question कि English में antonym synonym से है. Like this question is from legal reasoning, and legal reasoning में that question is from torts law. Torts law में भी that question is from vicarious liability, for instance. So that's how you will come up with the street view. अब मैंने street view and satellite view नाम क्यों दिया? It is nowhere mentioned. It's this name is given by me. ये नाम मैंने दिया है कि किस तरह स्ट्रीट, मैंने सैटेलाइट व्यू एंड स्ट्रीट व्यू नाम क्यों दिया. लेट मी गिव यू एन इजी एग्जांपल. आई वाज गोइंग थ्रू, मैं कहीं कहीं से गुजर रहा था एंड मैंने गूगल मैप खोल रखा था. इट वाज नेविगेशन इन माय कार, एंड उस गूगल मैप ने मुझे गलत रास्ता दिखा दिया. वहां एक इंसान था, मैंने उस इंसान से पूछा कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है. उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया. वहां मेरे माइंड को एक बात स्ट्रक कर गई कि जो गूगल मैप्स हैं वो सैटेलाइट व्यू है. मतलब मैंने एग्जामिनेशन से इस बात को कनेक्ट किया. जैसे गूगल मैप को सिर्फ बड़े बड़े हाईवेज नजर आते हैं, उन हाईवेज के बीच की छोटी छोटी गलियां नजर नहीं आती, स्ट्रीट्स नजर नहीं आती. ओके, वो स्ट्रीट्स उन्हीं लोगों को पता है जो उन स्ट्रीट से गुजरे हैं. आपके क्लैट के जो हाईवेज हैं वो हैं 5 सेक्शंस, और इन 5 सेक्शंस को जानना सैटेलाइट व्यू है, विच इज नॉट एनफ. जैसे मैं उस दिन फंस गया था, आप भी फंस जाओगे. बट अगर किसी को स्ट्रीट व्यू पता है, व्हाट इज दिस स्ट्रीट व्यू? द 150 क्वेश्चंस इज द स्ट्रीट, आर द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिलेबस. कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के जिस तरह गूगल मैप्स को हाईवेज नजर आते हैं, स्ट्रीट्स नहीं. गूगल मैप्स को बड़े बड़े हाईवेज तो नजर आएंगे, उन हाईवेज के बीच से जो हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रीट्स निकल रही हैं वो नजर नहीं आएंगी. सैटेलाइट इज सो फार अवे. उन स्ट्रीट्स की नॉलेज उन्हीं लोगों को होगी जो उन स्ट्रीट से गुजरे हैं, एंड यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट. सो आपको क्या करना है? सिमिलरली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के जो 5 सेक्शन है वो तो सिर्फ बड़े बड़े हाईवेज हैं. उन हाईवेज के बीच की उन स्ट्रीट्स को अगर नहीं जानोगे तो स्मार्ट प्रिपरेशन नहीं हो सकती. All right. So what you need to do? These 5 sections are the highway. In 5 sections की knowledge है तो you are on the satellite view. And these 150 questions are the street. If you have the knowledge of these 150 questions, you are on the street view. And the street view makes you street smart and leads to, at least it would maximize your chances of cracking CLAT. Got it? ऑफिशियल साइट पर भी है कि प्रियांशी व्हाट यू आर सेइंग, ऑफिशियल साइट पर भी है. ओके, प्रीवियस ईयर पेपर्स पूछ रहे हैं आप. द प्रीवियस ईयर पेपर्स आर इजीली अवेलेबल ऑन ऑफिशियल साइट्स एज वेल. यस, सो यू कैन गो फॉर इट. एटलीस्ट आप इसकी फुट पिक ले लीजिए. इट इज माय हैंडराइटिंग, ये मैंने ही नोट्स बनाए हैं. मैंने आरजेएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स लिए एंड मैंने हर एक क्वेश्चन को एनालाइज किया. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम विच सब्जेक्ट एंड विच टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 2, एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 100 तक मैं गया फॉर एवरी ईयर. एंड आफ्टर डूइंग द एनालिसिस एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए, राइट एन ऐसे लाइक पैराग्राफ जिसमें आप अपने एनालिसिस की रिपोर्ट देंगे. ओके, एंड आफ्टर द एनालिसिस इज ओवर, फॉर इंस्टेंस यू हैव डन द एनालिसिस ऑफ 2020 पेपर ऑफ क्लैट. ऑल राइट, आफ्टर द एनालिसिस राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, एंड इन दिस पैराग्राफ आप बताएंगे दैट व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ द पेपर. इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए, किस लेवल के आए और किस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज्यादा फोकस था. एंड गाइस बिलीव मी, अगर पिछले 5 साल के टॉपिक्स आपने कवर अप कर लिए देन 6th ईयर में कोई न्यू टॉपिक नहीं आने वाला है. द क्वेश्चंस वुड डिफर बट द टॉपिक्स वुड बी सेम. आई होप माय स्ट्रीट व्यू स्ट्रेटेजी एंड सैटेलाइट व्यू स्ट्रेटेजी इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. If anybody has any question, they can ask me in the live chat before I move forward. Okay. Thank you, Trasik. And sir, since the pattern has changed from 2020, should we analyze the papers prior to 2020? Yes, you should analyze. If only the pattern has changed, the syllabus has not changed. Pattern badla hai, syllabus nahi badla hai. Okay. So you can note down the topics even from the previous years. If you are preparing for CLAT 2022, then analyze the paper from 2018 onwards, at least from 2018 to 2021. इनको एनालाइज कीजिए. इनसे जो टॉपिक्स निकल के आएंगे उस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा. डू यू नो, आप इस चीज को खुद आप देख सकते हैं. 2015 एंड 2018 का क्लैट का पेपर उठा के देख लीजिए. द टॉपिक्स आर एग्जैक्टली सेम.
दे आर जीरोक्स सेम। क्वेश्चन नंबर 1 अगर एंटोनिम सिनोनिम था तो क्वेश्चन नंबर 1 दोनों ही इसमें एंटोनिम सिनोनिम था। अगर क्वेश्चन नंबर 31 जनरल नॉलेज के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड था तो 2015 में, तो 2018 में भी सेम था। क्वेश्चंस वर डिफरेंट बट टॉपिक्स वर सेम इन 2015 एंड 18, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस स्ट्रीट व्यू विल डेफिनेटली वर्क। लेट्स मूव फॉरवर्ड, कमिंग टू द बेस्ट स्टडी प्लान। सो गाइस, प्लान तो आपको खुद बनाना है। द फर्स्ट स्टेप इट्स इज मेकिंग अ प्लान। रिमेंबर, इफ यू हैव अ विश, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरी विश है कि मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना है, आई वांट टू स्टडी इन नालसा, हैदराबाद और एनएलएसआईयू बैंगलोर। सो गाइस, विश तो क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज अगर पूरी कर दें तो कर दें, अदरवाइज विश पूरी नहीं होती है। अगर आप बहुत लकी हैं, इफ यू आर द गॉड्स चाइल्ड, देन विश पूरी हो सकती है, बट इट्स लाइक गैम्बल, विश पूरी नहीं होती है, गोल्स पूरे होते हैं। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ विश एंड अ गोल। इफ इट्स योर विश दैट यू वांट टू स्टडी इन नेशनल यूनिवर्सिटी, तो आई एम सॉरी टू से बट भूल जाइए, विश पूरी होने के चांसेस बहुत कम है। इफ इट्स योर गोल टू बी अ स्टूडेंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी, तो बिल्कुल पूरा होगा। बट हाउ कैन यू कन्वर्ट योर विश इनटू गोल? रिमेंबर, plan, only a plan can convert your wish into a goal. All right, if you have a plan, then if you have a plan, then you can convert your wish into goal. No other way, no other way. Mark my words. That's why I'm saying you should make a plan, the best study plan should be according to your feasibility. मैं सिर्फ बताऊंगा उस प्लान में क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को नाइट में पढ़ना पसंद हो, कुछ स्टूडेंट्स को दिन में पढ़ना पसंद हो, बट आई विल जस्ट टेल यू दैट व्हाट शुड बी द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन ईच एंड एवरी प्लान दैट आर pervasive means applicable to all the plans. Remember, a goal without a plan is just a wish, and only a plan can convert a wish into a goal. All right. So, and what Sakshi thinks, plan, courage, and smart work can. Yes, Sakshi, obviously. So, the best study plan should, there should be a smartly drafted action plan. एक action plan होना चाहिए जिसे आप smartly draft करें. Now, how can you smartly draft an action plan? So, first of all, let me give you the essentials of a plan. सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए आपके सिलेबस के लिए, इसलिए प्लान करने से पहले एनालिसिस जरूर करें। दैट्स व्हाई मैंने आपको पहले ये बात बताई, स्ट्रीट व्यू ऑफ द सिलेबस जानना है, उसके बाद प्लान बनाना है। क्योंकि पहले अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप प्लान क्या करेंगे? इट्स जस्ट लाइक कि मुझे रास्ता पता नहीं और मैंने गाड़ी ऑन कर दी। अरे, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले, सड़क पर चलने से पहले रास्ता तो पता हो, वरना गलत रास्ते पर जाओगे। वही बात हुई, योर हार्ड वर्क वुड नॉट बी चैनलाइज्ड इनटू राइट डायरेक्शन। अगर सही दिशा में जाना है, सही रास्ते पर जाना है, तो रास्ते को जानना जरूरी है। द रास्ता इज द सिलेबस, द वे इज द सिलेबस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो द सिलेबस। द वेरी फर्स्ट स्टेप, द वेरी इनिशियल स्टेप, दिस इट इज द प्री रिक्विजिट स्टेप। ये प्री रिक्विजिट है। व्हाट इज प्री रिक्विजिट? जो शुरुआत करने से पहले, प्लान बनाने से पहले भी जरूरी है समझना सिलेबस को। इन सिलेबस को समझना मेरी स्ट्रीट व्यू स्ट्रेटेजी के साथ, नॉट विद द सैटेलाइट व्यू, बट दिस स्ट्रीट व्यू स्ट्रेटेजी। गाइस, ये स्ट्रीट व्यू स्ट्रेटेजी मैंने खुद बनाई है, ओके, एंड इट हैड वर्क फॉर मी, आई होप इट वुड वर्क फॉर यू एज वेल। एंड once you will start following this street view strategy, do tell me its results, okay? Do let me know in the live chat, at least in the comment section of this video only. मुझे बताइएगा कि ये स्ट्रीट व्यू स्ट्रेटेजी आपके लिए काम की है या नहीं। ऑल राइट, what are the results and what are your opinion about it? All right, so essential information, first of all you should know the essential information about your syllabus, जो street view strategy से आ जाएगी। Once you are done with this thing, how the syllabus should be covered in the allotted time, you should know the time जो आपके पास है। Like who are preparing for CLAT 2023, the time for them, I will say 7 months या 6 months रख लीजिए। Keep 7 months to come, 6 months to complete the syllabus. All right, not 7 months. Keep 6 months. Like who are preparing for CLAT 2023, keep one year and 6 months. So you should know the allotted time और उस time में कैसे cover up करना है। You should know the methodology of study. Every person has different methods of studies. Like जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैंने कभी मॉक्स सॉल्व नहीं किए। बिलीव मी, जो पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने देखे वो मेरे एग्जामिनेशन हॉल में थे, when I appeared for the entrance examination. So how did I study? मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ता था। I like reading concepts, but मुझे मॉक सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता था। But I know a lot of students जो मॉक्स सॉल्व करके टॉप करते हैं। वो कहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने में मजा नहीं आता, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है। सो यू कैन हैव अ
you can have any methodology to study, but remember that methodology of study should be interesting to you. आपको जिसमें मजा आए, क्योंकि इंटरेस्टिंग हुई तो होगी, इफेक्टिव होगी. There are different methodologies. If you like to read concepts, go with it. If you like to solve questions, go with it. Okay, that doesn't matter. Now what to do and what not to do, it is also very important. क्या करना है और क्या नहीं करना है. हालांकि आप सभी समझदार हैं, आपको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना. मैं भी आपको बताऊंगा इन द कमिंग स्लाइड्स. एंड डिटेल्स ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अब ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है. ये सिर्फ आप ही जानते हैं. नो वन कैन नो यू बेटर देन यू योरसेल्फ. आपको आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता इतना अच्छा. All right, so you should know that your strengths and your weakness, work upon your weakness and work upon your strengths as well. Because अगर आप strong हैं तो आपको strongest बनना है, और अगर आप weak हैं तो आपको less weak बनना है. You just need to improve. I am not saying कि अपनी weakness में आप, if somebody do not like maths और या maths में अच्छा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि maths में topper बन जाओ. Just improve. Just improve in both. Improvement is the key to success. Okay. And the second step, the initial step is to understand the syllabus. Then you need to draft a plan, and then you need to stick to it. अगर प्लान बना के कागज पे प्लान बनाए और वो पढ़ा है, आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे, विदाउट एग्जीक्यूशन व्हाट इज अ प्लान? इट इज जस्ट अ बच ऑफ पेपर. बारिश का मौसम आए, उसकी नाव बना के, कश्ती बना के आप बहा दो. ओके, उसका हवाई जहाज बना के उड़ा दो, या वो पढ़ा रहे, क्या फर्क पड़ता है? इफ यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इट, देन इट इज वेस्ट. इट इज जस्ट अ बच ऑफ पेपर. अगर आप प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फिर उस प्लान का फायदा क्या है? देन एग्जीक्यूशन इज मोर एज इंपॉर्टेंट एज मेकिंग ऑफ द प्लान. So just stick to it, execute it rigidly. All right, and some more things to keep in mind. आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेंगी. Some things, your timetable और action plan should establish a work life balance. ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स. वर्क लाइफ बैलेंस होना जरूरी है. वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स when your life is full of happiness. आपको सब कुछ मैनेज करके चलना. If you want to play, खेलना भी है. If you want to go in social gatherings, go in them. But at the same time, हर दिन आपके प्लान में कुछ टारगेट्स होने चाहिए जो अचीव होने जरूरी हैं. गिव योरसेल्फ स्मॉल इंटरवल्स एंड लेजर ब्रेक्स एंड रिलैक्स योर माइंड. जब पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं 5 घंटे तक नॉन स्टॉप आप बैठे हैं. सी, इट इज अ साइंटिफिक रिसर्च कि ह्यूमन माइंड भी शुरू के 1 या 2 घंटे तक ही अच्छे से काम करता है. आफ्टर दैट द एफिशिएंसी ऑफ द माइंड स्टार्ट्स रिड्यूसिंग. सो 2 घंटे पढ़ो, फिर 15 मिनट का ब्रेक दो ताकि एफिशिएंसी वापस से बूस्टअप हो जाए, एंड देन स्टार्ट studying again. Definitely. So small intervals is required. What is Tasik saying? So honestly, your advices are the best that someone could have ever told me. I will surely tell you within few weeks whether your tips are working for me. That's great, Tasik. Means एक टीचर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? That my advices are working on you. Yes, I would be more than happy if I, अगर आप सक्सेसफुल होंगे, you would be happy, but I would be more than happy. All right. Third thing, फिजिकल एक्सरसाइज. लियोनार्डो डा विंसी ने बहुत ही सही बात बोली है, दैट अ साउंड माइंड ड्वेल्स इन अ साउंड बॉडी. एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही रहता है. सो इफ यू आर नॉट एंगेज्ड इन फिजिकल एक्सरसाइजेज, इट कैन बी योगा, इट कैन बी एरोबिक्स, इट कैन बी जिम, एनीथिंग. अक्षय कुमार की मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था. ही वाज सेइंग कि जो इंसान अपने शरीर को 1 घंटा नहीं दे सकता उसको मर जाना चाहिए. मींस सिंपली गाइस, इफ यू कैन नॉट गिव 1 hour to your body, then you cannot prepare effectively. A sound mind dwells in a sound body. So physical exercise करनी है. आपके प्लान में फिजिकल एक्सरसाइज भी होनी चाहिए. और टाइम टेबल शुड हैव फिजिकल एक्सरसाइजेस. योर टाइम टेबल शुड बी मेड लाइक सच कि स्मॉल इंटरवल्स देना जरूरी है. स्मॉल इंटरवल्स देना जरूरी है बिकॉज माइंड की एफिशिएंसी कम होने लगती है जब आप बहुत लंबे टाइम तक बैठकर पढ़ते हैं. कितना भी शार्प माइंड हो, कितना भी ज्यादा आप फोकस्ड हो, बट इट हैपेंस. स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स. यस, अगर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में मैं सेम सब्जी खाऊंगा तो फिर मूड खराब हो जाएगा. ऑलराइट, आई वुड नॉट लाइक कि मुझे जो ब्रेकफास्ट में खाए वही मैं लंच में खाऊं और वही मैं डिनर में खाऊं. सेम थिंग अप्लाइज टू योर माइंड एज वेल. आप सुबह को इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप शाम को इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप रात को इंग्लिश पढ़ रहे हैं, माइंड भी बोर हो जाएगा. सो स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड स्मॉलर इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स. सो योर टाइम टेबल शुड बी सच कि हर दिन एटलीस्ट स्टडी 2 or more than 2 subjects. एक सिंगल सब्जेक्ट पर स्टिक नहीं रहना है. लाइक इन द मॉर्निंग आई स्टडी मैथमेटिक्स, देन मैं मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, देन मैं लॉ पर चला गया. व्हेन आई एम बोर्ड विद लॉ, आई गो टू इंग्लिश.
All right. So what you have to do, you should not devote your whole day to one single subject. At least study two or more than two subjects in your timetable, and instead study different subjects as I said, and it should be in smaller time frames. Okay, quantity doesn't matter, quality matters, and that's something a smart student does. Now testing is very important. I will teach you in my later classes a three piece formula और मैं इसी के basis पे आपको पढ़ाऊंगा. What does this three P stand for? The first P stands for plan, जो हम लोग अभी करेंगे. अब आपको प्लान करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्लान किस तरह करना है. ऑलराइट, आफ्टर प्लानिंग, प्लान के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है. यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द प्लान, एंड वंस द प्रिपरेशन इज डन, you need to practice, because practice makes the man perfect. It is the 3P formula which is the key to success. Plan, prepare and then practice. But at regular intervals test karna zaruri hai that whether the preparation is going in the right direction or not. As I said, right direction is more important. That's why I say कि testing जरूर करनी है. So appear for mock tests, practice test, mock test देते रहें at regular interval so that you can test that whether your preparation is on the right track or not. Okay, preparation on right track is important. Preparation is not important. On right track is important. Early to bed, early to rise. अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर it is just a myth. मुझे लगता है, it's my personal opinion. It may vary. You might, you may agree, you may not, you may disagree. That's your opinion. But according to me, early to bed, early to rise works. It had worked for me. So it is not a myth. It's a reality. So and it leaves positive result. A sound sleep इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अगर आप चाहें तो इस स्ट्रेटेजी को, इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, और टाइम टेबल शुड इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी. गाइज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. जब मैं क्लास 12th में था, luckily I scored 96% in class 12. So my principal was giving a speech in the school and उन्होंने एक बात बोली. He said that this mind has a alarm. इस माइंड में अलार्म होता है, और अगर आप एक चीज को काफी दिनों तक करें तो माइंड को अपने आप उस चीज को उसी वक्त करने की आदत हो जाती है. सो ही सेड दिस थिंग कि आपका एग्जामिनेशन, जो क्लास सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन होता था, वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होता था फॉर 3 years. फॉर 9, ओके, सुबह 9 से 12 बजे तक, सॉरी, फ्रॉम 9 to 12 सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता था. सो डू यू नो व्हाट डिड ही टोल्ड अस एज स्टूडेंट्स? ही टोल्ड कि आप लोग जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं वो 9 से 12 के टाइम फ्रेम में ही करें. नाउ व्हाट विल हैपन हियर, माइंड को पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा काम इस टाइम फ्रेम में करना है. द माइंड नीड टू वर्क इन दिस टाइम फ्रेम विद अटमोस्ट एफिशिएंसी. एंड यस, दिस थिंग वर्क फॉर मी. मैंने 9 से 12 के टाइम फ्रेम में मॉक्स करने शुरू किए, एंड दिस थिंग वर्क. जब मैं 9 से 12 अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठा इन दैट सीबीएसई एग्जामिनेशन, माय माइंड वर्क विद अटमोस्ट एफिशिएंसी. सी गाइस, if I hope you might have seen this thing. आप 5 बजे का अलार्म 10, 15, 20 दिन तक लगाएं. 21st डे पर, नेक्स्ट डे पर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आप विदाउट एनी अलार्म आपकी आंख अपने आप 5 बजे खुल जाएगी, बिकॉज देयर इज अ माइंड क्लॉक जो काम करती है. यस, दिस माइंड क्लॉक इज नॉट विजिबल बट इट वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स. ओके, okay sir, I got late to bed and wake up early in morning. That's not good classic. That's not good. A sound sleep should be there. आपको कम से कम 6 से 7, 6 years की स्लीप तो लेनी ही लेनी है. ऑल राइट, सो you should change. As I say, change क्या है? Change is the law of nature and everything except this very law is subject to change. बदलाव तो इस प्रकृति का नियम है, और इस बदलाव के कानून के अलावा बाकी सब कुछ बदल रहा है, तो अपने टाइम टेबल को भी बदलिए. All right, all right. And guys, this mind clock, work on the mind clock as well. Means I told you something which is actually scientific thing. ये scientific है. There is a mind clock. All right. And now some students, because I think most of the students who are preparing for CLAT 2023, they are going to appear for class 12th boards as well. So how to manage CLAT preparation along with 12th boards? अब क्या करना है? It's the biggest dilemma that the students are facing. वो कहते हैं सर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें या फिर हम 12 क्लैट के लिए प्रिपेयर करें. ऐसा ना हो कि दो नाव पे सवार होने के चक्कर में हम डूब ही जाएं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट वाज सेइंग दिस थिंग कि सर मैं क्लास 12th पे
फोकस करना चाहता हूँ, बट मैं क्लैट को भी नहीं छोड़ना चाहता। और अगर मैं दो नाव पे सवार हुआ तो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तू डूब जाएगा, तो नहीं डूबोगे। इफ यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट, आप नहीं डूबोगे। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वर्क स्मार्टली एंड थिंक वाइजली। वाइजली सोचो। आप उस देश में रहते हो जहां पर इस दुनिया का सबसे वाइजेस्ट मैन पैदा हुआ, चाणक्य है। आई डोंट थिंक कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नेम से भी जानते हैं, उनसे ज्यादा वाइज इंसान इस पूरी दुनिया में कोई रहा है। ऑल राइट, वी बिलोंग टू अ नेशन, टू सच अ ग्रेट नेशन। सो वर्क स्मार्टली एंड थिंक वाइजली। नाउ हाउ यू कैन थिंक वाइजली, आप कैसे वाइजली सोच सकते हैं? साक्षी क्या कह रहे हैं? साक्षी सेइंग सर आपका प्लान सर आंखों पर, आई विल फॉलो द प्लान फॉर माई कॉलेज लाइफ टू। दैट्स ग्रेट साक्षी, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। सो how can you work smartly and how can you think wisely in this situation? If you are in class 12th and you are preparing for CLAT, then guys, believe me, there are common links honge, whether you are in the art stream, whether you are in the science stream, whether you are in the commerce stream. Believe me, there are certain common links between the CLAT paper, the CLAT syllabus and your board examination. ये आपको कब पता लगेगा? जब आप CLAT का street view जान जाएंगे ना, when you will understand the street view of the syllabus, means when you will understand the actual syllabus of CLAT. अभी तो आपको actual syllabus पता ही नहीं है। आप कहते हैं वो 5 सेक्शन syllabus हैं, जो चीज आसानी से मिल जाए वो syllabus नहीं है। जो चीज आसानी से मिल जाए वो काम भी नहीं करेगी। गूगल भी बता देता है कि 5 सेक्शन syllabus है। Okay, when you will go through the actual syllabus, that is the street view of the syllabus, then you will identify this thing that the CLAT and the board has certain common links. इन common links पे काम कीजिए, क्योंकि यहां पर एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। Okay, if you are in art stream, then political science, history, geography, you are not only preparing for your boards, you are preparing for CLAT simultaneously, because general knowledge is an inseparable part, or general knowledge का inseparable part है history, polity and geography and all. All right, if you are a science student, then if you are a PCM student like, then science के भी questions GK में आते हैं. Mathematics will definitely help you in the quant section. If you are a commerce student, then business awareness might come in CLAT. So I will come up with a separate session जिसमें मैं common links भी बताऊंगा. The common links between your CLAT and your board syllabus. Don't worry. So guys, just identify the common links, because यहां पर आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं. Now coming to what are the do's, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. Choose a good newspaper. Like Trasic was saying, कि sir, I am a very slow reader. There is only one way to increase your reading speed, that is read and read. ओके, एक एथलीट से कहा जाता है कि अपनी भागने की स्पीड बढ़ानी है तो भागो, और कोई तरीका नहीं है। अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ानी है तो पढ़ो। चूज एनी गुड न्यूज़पेपर, आई विल सजेस्ट यू द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। ये दोनों बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं। ईदर गो फॉर द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। चूज अ न्यूज़पेपर, एंड सिर्फ पढ़ना नहीं है, नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स मेकिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, यू शुड हैव अ डेली हैबिट टू रीड। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी विंस द रेस। खरगोश और कछुए की कहानी हमें बचपन से सुनाई जा रही है कि खरगोश हार जाता है बजाय इस बात के कि वो बहुत तेज भागता है। द टॉर्टोइज विंस द रेस, कछुआ जीत जाता है, irrespective of the fact that he is so slow. So हमसे कहा जाता है that the moral of the story is slow and steady wins the race. Not slow and steady wins the race, only steady wins the race. जो स्टीडी है वो रेस जीत जाते हैं। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस एक गलत बात है। इवन अ फास्ट एंड स्टीडी कैन ऑल्सो विन द रेस, अ स्लो एंड स्टीडी कैन ऑल्सो विन द रेस। स्टीडीनेस विंस द रेस, स्टीडीनेस मीन्स कंसिस्टेंसी। सो आई विल से कंसिस्टेंसी आपको जिताएगी। ओके, आई वॉज वॉचिंग yesterday चांदनी चौक टू चाइना। मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है और मैं मूवीज से सीखता हूँ। इन चांदनी चौक टू चाइना चाइना अक्षय कुमार विलन से पिट रहा होता है और उसके कोच उससे कहते हैं कि इस विलन को उन उन सब मूव से खतरा नहीं है जो मैंने तुझे सिखाया एक बार। इसको तो उस मूव से खतरा है जो एक मूव तूने 1000 बार किया है। ही जस्ट सेड दिस थिंग, द डायलॉग वाज कि इसको उन मूव से खतरा नहीं है जो तूने उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तूने एक बार किए हैं, इसको उस एक मूव से खतरा है जो तूने 1000 बार किए हैं, बिकॉज वहां तो कंसिस्टेंस है, यू हैड प्रैक्टिस्ड इट। ऑल राइट, सो कंसिस्टेंसी विंस द रेस। All right, so you should have a daily habit. Make a separate notebook for each section. Yes, there shall be a separate notebook. ये आपको बाद में पता लगेगा that why it is important. All right, classification of your notes is very important. Don't sum up the whole day, as I told you this thing previously as well. पूरे दिन में एक single topic नहीं पढ़ना है।
ओके, देयर शैल बी नो बोर्डम, और बोर्डम को एलिमिनेट करना है, देन डिफरेंट टॉपिक्स शुड बी देयर एवरी डे एंड क्लैट टेंड्स टू रिपीट इट। मैंने आपको बताया था 2015 एंड 2018 का पेपर देख लीजिएगा। 2015 एंड 2018 के पेपर में ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 200, उस टाइम पे 200 क्वेश्चंस होते थे, द टॉपिक्स ऑफ ईच क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम, ओनली द क्वेश्चंस डिफर, the topics are exactly same. That's why I'm saying the previous year papers are very important. The previous year papers are Bible for you. Okay, I have a question. Jivesh is saying, sir, which book is best for JMI entrance? Jivesh, for JMI entrance, I will first of all ये बात समझ लीजिए, हर एक बुक में सेम सब्जेक्ट मैटर होता है, ओनली द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर डिफर्स. फॉर जेएमआई एंट्रेंस यू कैन गो फॉर बाबू अली. बाबू अली स्पेसिफिकली जेएमआई एंट्रेंस के लिए ही बुक बनाते हैं. All right, and what is Tasik saying? Tasik saying, sir, I do read it and it takes me 1 to 2 hours. That doesn't matter. कोई बात नहीं, 2 घंटे लग रहे हैं तो क्या हुआ, धीरे धीरे कम होगा. It is taking 2 hours now. After 1 month, it would just take 1 hour. All right, practice makes the man perfect. Yes, Tasik, you are right. Yes, you should write down the vocab. You are doing it correct. आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. अच्छा, एक स्टूडेंट्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है प्रोक्रास्टिनेशन. व्हाट इज दिस प्रोक्रास्टिनेशन? कल पर टालना. आज नहीं करूंगा, आज सुबह जल्दी नहीं उठूंगा, कल उठूंगा. तो कल कभी आता नहीं है. टुमारो नेवर कम्स. ओके, बीते हुए कल का हम कुछ कर नहीं सकते और आने वाला कल कभी आता ही नहीं है. सो व्हाट इज विद यू इज द प्रेजेंट. सो प्रोक्रास्टिनेशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मेक डेली प्लान्स. हर रोज प्लान्स बनाइए. देयर शैल बी डेली प्लान्स. ऑलराइट, इफ यू वांट दिस ड्रीम AIR रैंक विद यू beside your name, अगर आप चाहते हैं AIR1, then you should have no procrastination. Okay, 99.99% of the population of this world are the victims of procrastination, and that's why इस दुनिया में लीडर्स सिर्फ 0.01% है जिन्होंने इस प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर जीत हासिल कर ली. ऑलराइट, प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स कल पर टालना, कल पर कुछ नहीं टालना है. There shall be a work life balance. I am again reminding it, and rigid टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है. अगर आज मुझको वाइकेरियस लाइबिलिटी कंप्लीट करनी है तो करनी है, फिर चाहे जो हो जाए. ऑलराइट, if I am alive today, your what should be your view, what should be your mindset कि अगर मैं आज जिंदा हूं और मैंने टारगेट रख लिया कि मुझे वाइकेरियस लाइबिलिटी फ्रॉम टॉर्ट लॉ आज ही कंप्लीट करनी है, तो आज ही कंप्लीट करनी है सोने से पहले. द ओनली थिंग विच कैन स्टॉप मी इज डेथ. अगर मैं जिंदा हूं तो मैं करूंगा. दैट शुड बी योर माइंडसेट. अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे, आई डोंट थिंक नो वन that anyone can stop you from being successful. Now, what you should not do, क्या नहीं करना है जानना भी उतना ही जरूरी है जितना जानना है कि क्या करना है. You should not underestimate CLAT. अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा, बिकॉज इस एग्जामिनेशन में सक्सेस रेशियो सिर्फ 2% है. सक्सेस रेशियो इज जस्ट 2%. Okay, 98% of the students fails to get admission into national law universities and only 2% of the total aspirants gets admission. और उन 2% में से भी अगर मैं top 5 NLUs की बात करूं, because according to me, not all 22 national law universities are good. Only the top 6, 7, 8 NLUs are very good. They are spectacular. Okay, और उनमें admission लेना है, then you have to be among the top 0.5% of the total aspirants, and if you want to be like it, you have to do something differently. Okay, so your telegram channel, the telegram channel link would be there in the description box as well. Don't worry, Jivesh. Sakshi, self study, yes, self study is very important. सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, कितना भी अच्छा टीचर मिल जाए, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता. ओके, कहते हैं भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है. तो वो सेल्फ स्टडी खुद की मदद करना है. टीचर्स भी उसी की मदद कर सकते हैं जो अपनी मदद खुद करेंगे, और खुद मदद कैसे करनी है? सेल्फ स्टडी से. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के इंग्लिश सेक्शन में फ्लुएंसी टेस्ट होती है. नॉट एट ऑल. बहुत सारे मैंने टॉपर्स देखे हैं जो इंग्लिश में बिल्कुल भी फ्लुएंट नहीं है. दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, बट दे नो, दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, बट दे आर गुड रीडर्स. दे नो गुड, देयर ग्रामर इज गुड. सो बेसिकली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की इंग्लिश आपकी ग्रामर एंड रीडिंग स्किल्स, आपकी एनालिटिकल एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स टेस्ट करती है, दैट हाउ यू कैन रीड इन बिटवीन द लाइंस. It would not test your communication. It is not an interview. All right. Last minute studies बिल्कुल नहीं करनी है. महेंद्र सिंह धोनी said this thing कि पूरा साल नहीं पढ़े
और अब पढ़ लिए तो भी क्या हो जाएगा, और अगर पूरा साल पढ़े तो एग्जामिनेशन से एक दिन पहले नहीं भी पढ़ोगे तो भी क्या हो जाएगा। तो लास्ट मिनट स्टडीज पे रिलाई नहीं करनी है, इट डू नॉट वर्क, इट डू नॉट वर्क। And do not completely ignore any section. You should not ignore. A lot of students ignore the quantitative section कि सिर्फ अब 10 क्वेश्चंस आएंगे या 15 क्वेश्चंस आएंगे, let's ignore it. You should not. You should not. You should not ignore any section because एक सिंगल मार्क्स से रैंक्स कई हजार आगे पीछे हो जाती हैं. All right. And the last thing, real test is of your smartness. Why I am saying that the real test is of your smartness? क्या कभी देखा है क्या AIR 1 के 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स आते हैं? क्लैट जब पहले ओल्ड पैटर्न में होता था तो क्या AIR 1 के 200 में से 200 मार्क्स आते थे? नहीं, कभी नहीं। 100% मार्क्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। रिमेंबर गाइस, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बात समझते ही नहीं है। ओके, व्हाट इज Trasic saying? Yes, Trasic, you are right, and that's what I was saying. Yes, so 100% marks never comes in any competitive examination and CLAT is no exception to it. 100% marks कभी नहीं आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कुछ हो। सो आपको 100% मार्क्स तो एम करने ही नहीं है, बिकॉज आ नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप 120 मिनट्स में पूरे 150 क्वेश्चंस को करेक्ट करके आ जाए। नॉट पॉसिबल। सो नाउ द रियल टेस्ट इज ऑफ योर स्मार्टनेस। यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट विच आर इजी क्वेश्चन, विच आर टफ क्वेश्चन, किन क्वेश्चन को स्किप करना है और किन को अटेम्प्ट करना है, जानना जरूरी है। बिकॉज यू नीड टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस विद बेस्ट एक्यूरेसी। 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। 120 मिनट्स में अगर आप 120 मिनट्स में अगर आप 130 क्वेश्चंस सॉल्व करें विद 90% एक्यूरेसी, देन योर स्कोर वुड बी अराउंड 115 to 120, and at this score you will easily manage to get admission. All right, so remember this thing students, 100% मार्क्स स्कोर करना है नहीं, आपको टफ क्वेश्चन स्किप करने हैं एंड इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन स्किप करने हैं, इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो यू शुड हैव द स्किल्स, द रियल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इन क्लैट द रियल टेस्ट इज ऑफ योर स्मार्टनेस, हाउ स्मार्ट यू आर। अ स्मार्ट स्टूडेंट विल नॉट ट्रक इनटू अ क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन में फंसेगा नहीं। अगर उस वो पढ़ते ही समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, ये क्वेश्चन पेपर में दिया ही गया है आपकी स्मार्टनेस चेक करने के लिए, उस क्वेश्चन को स्किप कर देगा। जो लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, जो इजी है, उसको वो अटेम्प्ट करेगा। इजी क्वेश्चन में भी 1 मार्क्स मिलेगा, हार्ड क्वेश्चन में भी 1 मार्क्स मिलेगा। तो आप कौन सा करना पसंद करेंगे? ऑलराइट, इफ समवन सेज टू यू कि माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे तो भी मैं आपको वही इनाम दूंगा, आप घर की 5 फ्लोर की बिल्डिंग चढ़ोगे तो भी मैं आपको वही इनाम दूंगा। माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे या वो 5 फ्लोर की बिल्डिंग? ऑब्वियसली वो 5 फ्लोर्स, बिकॉज दैट इज इजी, दैट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो आप हार्ड हो क्वेश्चन या इजी, सब में मिलेगा तो 1 मार्क्स ही ना। यू नीड टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन स्किल्स कैसे आएंगी? आई एम गोइंग टू टीच यू दिस थिंग एज वेल। आइडेंटिफिकेशन स्किल्स विल कम विद टाइम, जस्ट प्रैक्टिस द मॉक्स। Trasic is saying, sir, sorry for asking, but will the sessions on this channel always be for free? Yes, Trasic. The sessions on this session would be free, as well as मैं Unacademy के पे special classes भी ले रहा हूँ। I'm taking special classes at the Unacademy platform. You can download the application and you can attend my classes there as well. The special classes on important topics. I have taken almost 9 or 10 special classes there. I'm going to take in future as well. All right, guys. With this, I thank you all for being a patient student, a patient audience, and I hope my session was helpful for all of you. If it is helpful, first of all, subscribe this channel, hit the bell icon, like कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए that I was teaching well. You can for this session there is no PDF, but when I will teach you something जिसके लिए PDF की जरूरत होगी, you can download the PDF as well. So like and share with your friends, because प्यार बांटने से बढ़ता है और knowledge भी बांटने से ही बढ़ती है। All right, bye bye, good night, and I wish you all the best for our future. Have a great future.